ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਬੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਆਜੋ सुनते हैं। 2007-8 से हम लोगों ने इसके लिए हिंदू समाज को साथ लेकर संघर्ष शुरू किया और जिसमें 2014 की जो पटियाला की बाई इलेक्शन थी असेंबली की, जिसमें महारानी श्रीमती प्रनीत कौर जी जो उस इलेक्शन में कैंडिडेट थी, तो हम लोगों ने भी हिंदू मंदिर एक्ट की लेकर पंजाब के जो पटियाला के विधानसभा के बाई इलेक्शन के चुनाव थे उसमें हमने पार्टिसिपेशन किया, तो हम खड़े हुए। जिसके बाद पंजाब के आज के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, इनके संदेशवाहक के रूप में चिरंजी लाल गर्ग जो कि बठिंडा से कांग्रेस के नेता थे उस समय, उन्होंने आकर हमें इसके विषय में समर्थन मांगा कि हम आपके मंदिर एक्ट के लिए काम करेंगे। तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि महन जी ये विषय जो है वो हमारा विषय है, तो ये तो मेरा पर्सनल विषय है, हमारे परिवार ने ज़मीनें जो है वो धर्मस्थलों को दान करी हुई हैं और हम लोग तो आपके इस विषय को लेंगे ही लेंगे और पार्लियामेंट में ये विषय हम लोग ज़रूर उठाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे MP सिंह जी को भी बुलाया और कहा कि 0 आवर के लिए मेरा क्वेश्चन तैयार करिए। हमें इससे एक तसल्ली हुई और हमने महारानी प्रनीत कौर जी के पक्ष में अपना नाम वापस लिया और महारानी प्रनीत कौर के पक्ष में बैठ गए और हिंदू समाज को महारानी प्रनीत कौर को बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया और जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने वोट दिया और बड़े बहुमत से महारानी साहब की विजय हुई। इसके बाद इस विषय के ऊपर काम नहीं हुआ, तो 2017 के जो पंजाब विधानसभा के चुनाव थे उन चुनावों से पूर्व 2016 में कॉफ़ी विद कैप्टन प्रोग्राम में हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उनका वादा याद करवाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो धर्म अर्थ है ये सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है और जब जब हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे सटनली जब हम लोग सरकार में आएंगे तो इसको आपके जो ये इसके मंदिर एक्ट का जो इशू है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये पॉलिसी बनाना स्टेट का काम है, हम लोग करेंगे।
2017 में सरकार बन गई। तो सरकार बनने के बाद हमने रिप्रेजेंटेशन दी, हिंदू समाज ने उनको, महाराज साहब को उनका वादा याद करवाया, और रिप्रेजेंटेशन के बाद सीएम ऑफिस ने नीचे ऑफिसर्स से इसकी रिपोर्ट मांगी, पर 4 साल से फाइल जो है वो इधर एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक घूम रही है, और उस पर आज तक 4 साल में कोई कंक्रीट वर्क नहीं हो पाया, जिसको लेकर 4 मार्च 2021 को पंजाब के कई हिंदू संगठनों ने इकट्ठे होकर पटियाला से चंडीगढ़ की तरफ भगवा मार्च किया, जिसमें हजारों सैकड़ों लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर जो हिंदू मंदिर एक्ट की मांग की, जो आप पीछे देख सकते हैं, ये झंडे लगाकर गाड़ियों के ऊपर, तो इन लोगों ने 400 के करीब गाड़ियों का काफिला चंडीगढ़ की तरफ कूच हुआ। तो चंडीगढ़ के बॉर्डर के ऊपर हमें रोक लिया गया, और रोककर हमें मुख्यमंत्री कार्यालय का एक पत्र, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग का एक पत्र वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें दिया, और 12 तारीख को हमारी 12 मार्च को इसी साल की 12 मार्च को जो सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सुरेश कुमार जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी है, उनसे हमारी मीटिंग हुई सीएम ऑफिस में। तो बड़ी मीटिंग पॉजिटिव माहौल में हुई। स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ी सी ऑब्जेक्शन की कि ये कानून कैसे बन सकता है, पूरे देश में कहीं और कोई कानून नहीं है। तो हमने कहा कि सर ये कानून पूरे देश में नहीं है, तो कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो शुरुआत अगर पंजाब से होगी तो इससे पंजाब स्टेट को फ़ायदा होगा। और इसके साथ हमने उनको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का स्पष्ट कहना है द स्टेट हैव नो राइट टू मैनेज द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट है द टेम्पल्स शुड बी मैनेज्ड बाय डिवोटीज। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर सरकार इनका प्रबंधन कर रही है तो ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन है। और ये एक तरह से सरकार जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट की, सरकार का काम है कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना, सरकार का काम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करना नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें हुई। तो जब उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम आपकी इस मांग से सहमत हैं। ये मीटिंग हमारी बड़ी पॉजिटिव वे में, हमारी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो पूरी हुई। और अगली फर्दर जो मीटिंग थी उसके लिए उन्होंने कहा कि सीएम साहब जो है अभी आउट ऑफ द स्टेट है और वो आते हैं, तो उसके बाद हम लोग अगली फर्दर मीटिंग करके इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर उनका हमारे पास मैसेज आया कि हमने उनसे पूछा कि सर आगे का क्या प्लान है, मीटिंग कब है। तो उनका मैसेज आया कि हमें कोविड की स्थितियों को देखते हुए इस स्थिति में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। किसी भी तरह की पॉलिटिकल या सरकारी इंटरफेरेंस ना हो और धर्मस्थलों का प्रबंध धार्मिक व्यक्तियों द्वारा और समाज के चुने हुए लोगों द्वारा किया जाए, इसके लिए एक पूरे की पूरी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक कानून की आवश्यकता है। और उस कानून को हम संक्षेप में हिंदू मंदिर एक्ट के नाम से जानते हैं। वैसे इस एक्ट का पूरा नाम, जो कानून का पूरा नाम है, ये है देवालय देवस्थान प्रबंधन एक्ट, जिसको हम हिंदू मंदिर एक्ट के नाम से जानते और समझते हैं।